بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، پچھلے جو دو ویڈیوز ہم نے آلریڈی بنائے ہیں ان میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی۔ ان میں اپ گریڈیشن آف نالج انفارمیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور ویکیبلریز کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ تو اس کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہاں اکیڈمی میں بھی یہ کوشچن کیا اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس نے باہر سے بھی مجھ سے کنٹیکٹ کیا کہ آپ ایشیا کے لینتھ کے بارے میں آپ بتائیں کہ سی ایس ایس کا ایسے جو ہے اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے، کس چیز کی جو ایسے ہیں اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے، اور ایک جو جنرل پیپر ہوتا ہے جس میں ایس ایس ٹی کے ہیں یا باقی ایگزامس جو ہیں جو جنرل ریکروٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں ان کے اندر جو پیپر ہیں تو وہ ایسے ہم کس طرح اٹیمپٹ کریں، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ تو آج میں اسی چیز کے اوپر بات کروں گا کہ ایسے کی جو ہے وہ لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اس سے جو ہے وہ آپ کو کس طرح اگر آپ سیسز کیسے کرنا ہے تو اس میں آپ کو کیا اس کی لینتھ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، کتنے پیجز ہونی چاہیے، کتنی ورڈنگ ہونی چاہیے اس کے ساتھ پی سی ایس کا اگر کوئی پیپر ہے اس میں بھی اس سے تو وہاں پہ بھی ظاہر ضروری ہے، تو وہاں پر بھی جو ورڈنگ ہے اور پلس جو پیجز ہیں یہ کتنا لکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو جرنل پیپر ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو لہٰذا آج میں لینتھ آف ایسے کے اوپر بات کروں گا۔ تو آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لینتھ کتنی ہونی چاہیے سی ایس ایس کے پیپر میں۔ آپ کے آپ کو اگر آپ سی ایس ایس کے پیپر بچوں نے دیکھے ہیں جو پریویس پیپر ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اس کے ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 100 مارکس ہیں، اور اس کے لکھا ہوتا ہے کہ ورڈنگ جو ہے وہ 4000 سے لے کر کے 4500 تک ہونی چاہیے۔ پی سی ایس سے جو ہے وہ 50 مارکس کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے 2000 سے لے کر کے 2500 ورڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنرل پیپر میں 25 مارکس کی حصے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ 1000 سے لے کر کے 1200 ورڈس تک درکار ہوتا ہے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں سی ایس ایس کے سی کے اوپر آؤں گا۔ آپ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیٹیو ایگزام میں چاہے وہ پی سی ایس ہے یا سی ایس ایس ہے تو وہاں پہ آپ کو کیلکولیٹ پیجز دیے جاتے ہیں آنسر شیٹ کے طور پر۔ اب اس آنسر شیٹ کے اندر ٹوٹل کتنے پیپرز ہوتے ہیں، کتنے پیجز ہوتے ہیں؟ تقریباً 20 پیجز ہیں آنسر شیٹ کے 20 پیجز۔ اب اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا سی ایس ایس کے حصے کو لے کر کے آپ کو یہاں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے، جو میں اس کو سمجھا ہوں یا جو میری نالج ہے یا میں جو ٹیکنیکل 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 ورک جو میں سمجھا ہوں میں تھوڑا سا وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اب 100 نمبر کا حصے ہیں اور آپ کے پاس پیجز کتنے ہیں؟ 20 پیجز۔ اب 20 پیجز جو ہے یہ کیلکولیٹڈ اور ایک سائیکولوجیکلی اور ایک اس کے اوپر کام ہوا ہے اور ایک ٹیکنیکل ہوا ہے، کیونکہ یہ کیلکولیٹڈ پیجز 20 آپ کو دیے گئے ہیں، یہ آپ کو 18 بھی دے سکتے ہیں، 22 بھی دے سکتے ہیں، 25 بھی دے سکتے ہیں، 18 بھی دے سکتے ہیں۔ آخر 20 کیوں دیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 100 مارکس ہے آپ کے پاس 20 پیجز ہیں، پر پیج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پر پیج 25 کا جو ہے وہ 100 مارکس ہیں۔ اب بات یہ ہے، میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ پر پیج آپ کو 5 نمبر جو ہیں آپ کے پر پیج کے ہوتے ہیں۔ اگر 20 پیجز آپ لکھتے ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہے تو میرے خیال سے پر پیج جو ہے وہ آپ کو 5 مارکس ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب لکھنے میں بھی ظاہر رائٹنگس جو اسٹائل ہے مختلف اسٹوڈنٹس کے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض بچے جو ہیں وہ ایک لائن کے اندر کوئی 4 5 ورڈز استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کی رائٹنگ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گیپ دے کر کے وہ زیادہ گیپ دے کر کے لکھتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی رائٹنگ جو ہے جو نارمل لکھتے ہیں وہ 8 سے 10 ورڈنگ، جو تھوڑے سے چھوٹے لکھتے ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 ورڈنگ وہ یوز کرتے ہیں ایک لائن۔ اگر ایک لائن میں اگر وہ 10 ورڈز یوز کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال سے مجھے کچھ زیادہ لگ رہا ہے، 10 اکثر نہیں، اکثر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 7 سے 8 استعمال، اگر 10 ورڈز بھی وہ ایک لائن میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پیج جو ہے جو آنسر شیٹ ہے
उसकी जो टोटल उसमें आप लाइनें लिखते हैं वो तकरीबन नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो कोई 10 से 11, और जो जिनकी राइटिंग छोटी है या जो बारीक लिखते हैं वो तकरीबन इसमें 13-14 लाइन तक भी जा सकते। अगर मैं इसकी मैक्सिमम रेंज भी रखूं तो 15 लाइन्स में कह दूं, और 10 जो है वो वर्ड पर लाइन अगर मैं कहूँ तो भी 150 आ जाता है। अब 150 और यहाँ पे 20 पेजेस हैं, इस हिसाब से ये तकरीबन 3000 वर्ड्स आ रहे हैं, 3000 वर्ड्स आ रहे हैं। अब देखें ये 4000 से लेकर के 4500 वर्ड्स की जो यहाँ पे बात की जाती है से अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम ज़ाहिर है सोचते हैं, इससे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स सोच करके लिखते हैं। उसके बाद वही ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हमने की है, जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो फिर हम आउटलाइंस में लिखते हैं। ज़ाहिर है फिर हमने पैराग्राफ लिखने हैं। हम ज़ाहिर है पैराग्राफ के बीच जिस वक्त हम लिख रहे हैं तो उस वक्त हम सोचेंगे भी। आखिर हम कोई मशीन तो नहीं है, इंसान जो है वो इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। तो लिहाजा मैं जो समझता हूँ कि 4000 वर्ड से लेकर के 4500 ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वो है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट है। मेरे ख्याल से उनको खुद भी ये पता है कि 4000 से लेकर के 4500 वर्ड्स विद इन 3 आवर्स दिस इज इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से उनको भी पता है। जहाँ तक मेरी वो नॉलेज है तो मेरे ख्याल से अगर 3000 प्लस वर्ड्स कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीएसएस के पेपर में लिखता है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। 4000 जो है ये बहुत मुश्किल काम है, इसको लिखना 4000 को मेरे ख्याल से मुश्किल काम है। इसके अलावा अगर हम पीसीएस के ऊपर आ जाएं तो उसकी 50 मार्क्स है। अगर उसकी 50 मार्क्स हैं तो उसके लिए देखिए बिल्कुल हाफ ऑफ द सीएसएस एसए के हाफ ऑफ मार्क्स है उसके, इसके 2000 है, 2000 से लेकर 2500 वर्ड। अब बात यह है कि अगर हम 20 पेजेस सीएसएस के लिए लिखते हैं तो हमें पीसीएस क्योंकि उसी उस पे तो हमें इसमें कितने लिखने चाहिए, हमें 10 पेजेस लिखने चाहिए पीसीएस के लिए। वो क्यों, अगर 25 100 आते हैं तो इधर 5 10 5 जो है वो 50 आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सीएसएस क्योंकि मार्क्स को आपने देखना है, सीएसएस में अगर 100 मार्क्स हैं यहाँ पे 50 मार्क्स, तो इसका मतलब ये है वहाँ पे वर्डिंग भी हाफ है और यहाँ पे पेजेस भी और नंबर भी इसके हाफ होंगे। तो लिहाजा हमें जो पीसीएस ऐसे हैं 50 मार्क्स का, उसके लिए हमें कम से कम 10 से 12 पेजेस लिखने चाहिए। इसी तरह जनरल पेपर में जिसके 25 मार्क्स हैं और जिसके लिए ज़रूरी है कि वो 1000 से लेकर के 1200 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो वो ऐसे, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम अगर आप 5 नंबर पर पेज के हिसाब से करें, मेरे ख्याल से 5 पेजेस बनते हैं। अगर आप 5 पेजेस से कुछ ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप तकरीबन 7 से 8 पेजेस जो हैं ये आप 25 नंबर्स के लिए लिख सकते हैं। 25 मार्क्स के लिए ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 25 मार्क्स आपने सारे वो फोकस इसको नहीं करना, आपने इसे तो लिखना है, लेकिन ये 25 नंबर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके पेपर के और भी 75% मार्क्स जो हैं वो और भी हैं, आपने वो नंबर वो क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने। ये ना हो कि आप सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हो 12-13 पेजेस आपने 25 मार्क्स के लिखे हो और अब 75 नंबर के जो पेपर बाकी जो है उसमें से फिर बाद में आपके लिए मसला ना हो, आप उसको सॉल्व ना कर सकें और आपके नंबर वैसे ज़ाया। लिहाजा जितना आपको कहा गया है उतना ही आपको लिखना चाहिए। इसके अलावा मार्क्स की तो हमने बात की, पेजेस की भी हमने बात की कि सीएसएस से जो है उसमें हमें तकरीबन 20 पेजेस। जब मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने तकरीबन कोई 14 to 15 पेजेस लिखे थे और मेरा ऐसे क्लियर था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ अगर मैक्सिमम पे भी अगर कोई जाए तो मेरे ख्याल से 20 पेजेस दैट विल बी इनफ। और इसके साथ पीसीएस के जो हैं 50 मार्क्स हैं 2000 से लेकर के 20, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है।
अगर पीसीएस में 2000 से लेकर 2500 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसमें अगर आप 1500 वर्डिंग यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा, क्योंकि 15 नंबर और भी है, आपने और भी पेपर करना है। तो अगर आप 10 से 12 पेजेस लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पेपर आगे और भी कुछ करना है। जो 50 नंबर्स रह गए उनके लिए भी आपने टाइम निकालना। ये ना हो कि आप 50 नंबर्स के लिए जो है आप कोई 2 ढाई घंटे लगा दें और बाकी जो 50 नंबर्स है उसको आप टाइम ही ना दें। इस तरह भी आप जो है आप पेपर को विद इन टाइम और टाइम मैनेजमेंट का मसला हो सकता है पेपर। इसी तरह यहाँ पर जनरल पेपर में भी वही कि 1000 से लेकर अगर उसके ऊपर आप 7 to 8 पेजेस लिखते हैं तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब रहेगा। और ये एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि ये मैक्सिमम लिमिट है। जो यहाँ पे वर्डिंग ज़ाहिर किए गए हैं वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसके साथ पैरा की मैं बात करता हूँ। अगर सीएसएस की पैराग्राफ्स की मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि 15 to 16 पैराग्राफ्स सीएसएस के हिस्से में होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा उनके साथ मिला के कोई 18 पैराग्राफ्स होने चाहिए। इसके अलावा पीसीएस में हाफ ऑफ ज़ाहिर है, हाफ होल्डिंग चाहिए, हाफ नंबर है, तो पैराग्राफ भी आप हाफ 10 पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं 10 से 12 पैराग्राफ तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब रहेगा। इसी तरह जनरल पेपर में 25 नंबर हैं, 25 नंबर्स हैं और उसकी वर्डिंग जो है वो भी 1000 से लेकर के 1200 तक है। इस पेपर में भी अगर आप जो है कोई 7 to 8 पेजेस लिख देते हैं और इसके पैराग्राफ्स जो हैं अगर कोई 7 से लेकर के 8 पैराग्राफ तक आप इसमें लिखते हैं तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब, इसकी लेंथ भी होगी और इसकी वर्डिंग भी मुनासिब होंगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इससे के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके ऊपर होगा।